5.7% जो है उनको बच्चे नहीं चाहिए, यहाँ 8.2 को नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 50% मोर। ऐसा कैसे हो सकता है? मदरहुड ये है, इट इज ए ब्लिस। दे वांट बेबीज फॉर द जॉय दे ब्रिंग। व्हेन इट कम्स टू हैविंग किड्स, family or social or societal obligations count the lowest amongst the motivating factors for the Indian. Friends, ये एक न्यूज इट वाज देयर yesterday in Times of India. हालांकि buzz has been there for long कि we have started population decline in a way because जो fertility है जो 2.1 होना चाहिए, it has lower to 1.9, and what will be the implications nobody is talking about. But presently, let us go through the news. What does it say? It says, why is India's fertility rate falling so rapidly? Why it is falling so rapidly? आज तक तो कभी नहीं ऐसा हुआ। उसके बाद India's total fertility rate has dipped to 1.9, below the replacement level of 2.1. But most Indians told the United Nations Population Fund survey that they would prefer to have children. ये जो है UN का population fund जो है, मेरे ख्याल से तो that should have been more of an authority on population. But आगे देखते हैं क्या होता है। Teen young adult pregnancies have dropped. The graph between 1995 to 2022, the biggest drop occurred in the teenage pregnancies 15 to 19, with a similar fall seen in 20-24 age group. Improved success to education and lower risk of health issues arising from early motherhood have accompanied this drop. Crucial है, you are seeing it so significant. It is 1995 में you can say it was about 130 per thousand, and it has got down to almost 20. And in this section also, 20 to 24 also, in 1995 it was almost 250 and it has come down to below 150, 120, 130 you can say. For what is the reason given? Improved access to education and lower risk of health issues arising from early motherhood. पता नहीं, we have already known, I have made so many videos, what is the status of education and what is the status of health issues. एक तरफ ओबिसिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्टंटिंग बढ़ रही है, अंडरवेट भी बढ़ रहा है, ओवरवेट भी बढ़ रहा है। तो एजुकेशन का जो हाल है, कंसिस्टेंटली मेरी अपनी स्टडी जो है बिरहोर के उसमें गिरिडीह में संथाल एक स्कूल में 8th क्लास के बच्चों को कहा मैंने कि 1 to 15 लिखें रोमन में और देवनागरी में, एंड ओनली 9 could write, 25% could write just 1 to 15। तो कितना स्टेटस बढ़ रहा है ये तो सबको पता है, इस न्यूज रिपोर्टर को नहीं पता। Most Indians want small families. Among men 61% and women 70% respondents who shared their preferences regarding having children. More than 9 of the 10 they said they wanted babies. ये 9 of the 10 ये कहाँ के हैं? सर्वे कुछ नहीं बताता। Survey doesn't talk about the rural-urban divide. The survey also doesn't talk about the comparison between educated and uneducated or highly educated. Survey doesn't talk about in terms of the employment. ये सिर्फ जो है रैंडमली आप कह दें कि 10 में से 9 बच्चे चाहते हैं, वो 10वां क्यों नहीं चाहता भाई, ये भी तो बताओ। जबकि एक सर्वे ये कहता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है 20s और 30s में 25% ऑफ देम डोंट इंटेंड टू गेट मैरिड। तो उसका असर तो पॉपुलेशन पे जो पड़ेगा वो तो उसके बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। एनीवे, फीमेल्स में 8.2% दे डोंट वांट एनी चिल्ड्रन, 23% वन चाइल्ड, 54 एंड दिस 8.2 4+ चिल्ड्रन। ये जितनी दोनों फिगर हैं 3 चिल्ड्रन और 4+ कैन बी 5, 6, 7, 8, 9, तो ये तो सारा इसको बैलेंस कर ही देगी। Those who didn't want babies said it was not simply about an aversion to kids. For many, it's a response to entrenched gender norms and unequal parenting expectations that shape their decision among children. ये अवेयरनेस कितने लोगों में है भाई?
आप अगर गांव में रहते हैं और आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे नहीं हों, क्या इमेजिन कर सकते हैं आप? वो शहरों में भी अगर डिंक वाला मामला है, डबल इनकम नो किड्स वाला, तो अलग बात है। अदरवाइज ऑल्सो हमारे यहाँ जो बेसिक साइकी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे, आज भी शायद हालात वही होंगे। होता क्या था, कपल की शादी हुई तो लॉज एंड लॉज दोनों तरफ से जो है 3 4 5 महीने बाद कंसर्न शुरू हो जाता था कि क्या कर रहे हो भाई। मतलब पहला बच्चा तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, दूसरे की फिर देखी जाएगी। तो मान लो कि पहला बच्चा हुआ एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि बेटा होना चाहिए, वो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशन जो कहती है मुखाग्नि देने के लिए चाहिए। तो चलो मान लो पहला बेटा हो गया, अब कपल से कुछ नहीं कहा जाएगा। बेटा जब 2 साल का हो जाएगा तो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार उसको कहेंगे कि बेटे दीदी कब ला रहे हो। इशारा साफ होता है। लेट अस से कि बेटी हो गई, अगर बेटा हो गया फिर तो सदर्द हो गई, फिर दीदी की बारी आ गई। लेट अस से बेटी हो गई। अब बेटी जो है जब वो 2 साल की होगी तो उसको समझाया जाएगा कि बेटे तुम्हारा तो एक भाई है, तुम्हारी तो बहन है ही नहीं कोई, तो चलो फिर एक बहन भी चाहिए। और फिर भाई भी इतना समझदार हो जाएगा कि भैया मेरी 2 बहनें तो हैं, भाई तो मेरा कोई है नहीं। तो जिनको आप बीमारू स्टेट्स कहते हैं बेसिकली, अगर साउथ में अगर कंट्रोल हुआ है कुछ हद तक, इट हैज बीन बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। और आज भी नॉर्थ का हेल्थ और एजुकेशन का स्टेटस क्या है वो ये रिपोर्टर नहीं समझ सकता, ठीक है। और यही बात जो है इधर विमेन के बारे में है और उधर मेन के बारे में है। कंपैरेटिव जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें है। 5.7% जो है उनको बच्चे नहीं चाहिए, यहाँ 8.2 को नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 50% मोर। ऐसा कैसे हो सकता है? मदरहुड ये है, इट इज ए ब्लिस। दे वांट बेबीज फॉर द जॉय दे ब्रिंग। व्हेन इट कम्स टू हैविंग किड्स, family or social or societal obligations count the lowest amongst the motivating factors for the societal obligations count lowest। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट था पितृ ऋण का। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बच्चे नहीं चाहते तो भैया आप ही क्यों पैदा हुए थे ये भी बताओ। समाज को अगर जिंदा रहना है, जारी रखना है, तो वो जो आपका जो इवन रेट है फर्टिलिटी का 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल, उतना तो चाहिए ही। अगर ना डिंक्स हैं तो अलग बात है, पर कितने हैं लोग? जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, ऑब्लिगेशन, ये कोई खास फर्क है नहीं जो ये कह रहा है कि ऑब्लिगेशन और फिर फैमिली बॉन्ड और ऑब्लिगेशन को आप अलग कैसे कर सकते हैं? दोनों को मिलाएंगे ये तो कहीं ज्यादा हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेंटल रीजंस, दिस इज टू वे, बट देयर आर बैरियर्स फ्रॉम फाइनेंस टू हाउसिंग। ये बैरियर मेट्रोज में होती हैं, महानगरों में होती हैं, गांव में तो बिल्कुल नहीं होती, टाउन्स में कह सकते हो शायद। और हाउसिंग में फाइनेंशियल लिमिटेशन 38%, हाउसिंग लिमिटेशन 22%, एम्प्लॉयमेंट जॉब इतना, ये सबको ही अगर आप मिला दो तो इसके बेस पे आप पॉवर्टी डिसाइड कर सकते हो। आपके यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी 1.5% 2% आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कितना हो रहा है? 19% of the respondents said their partners wanted fewer children, making it the fourth biggest factor। ये देखो बहाना, उनको चाहिए कम बच्चे, पार्टनर को चाहिए, है ना, इनको नहीं चाहिए। एंड द इश्यूज विद एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ टू 61% of men and 60% of women say they have experienced limitations in reproductive autonomy. For 30% of men and 26% of women, this came in the form of external pressure to have babies or continue a pregnancy। तो अगर प्रेशर है तो उसको आप कम नहीं करेंगे, अपने समाज में ऐसा होता नहीं है। ऑल्सो 31% of men and 25% of women said they have been unable to access medical health related contraception और procreation। ये तो सिर्फ शहर की बात हो रही है, गांव में तो आशा वर्कर अवेलेबल नहीं होती, आंगनवाड़ी अवेलेबल नहीं होती, एनजीओ अवेलेबल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो है ये क्या कहता है, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन ए सर्वे कंडक्टेड बाय यूएनएफपीए एंड YouGov of more than 14,000 adults age 18 and above across 14 countries। 14,000 एडल्ट का आप जो है सर्वे कर रहे हैं 14 कंट्रीज में, मतलब 1,000 एडल्ट पर कंट्री। और जिस कंट्री की पॉपुलेशन 146 करोड़ हो उसमें 1,000 लोगों का
कितना मैटर करेगा। ये आई वो से टाइम्स ऑफ इंडिया को शेम आनी चाहिए, उनके रिपोर्टर कोई नहीं, एडिटर को भी आनी चाहिए कि आप सैंपल साइज, मैं तो प्यू को गालियां देता हूं कि वो 30-30 हज़ार कंट्री का करते हैं, ये तो 1,000 के बेस पे हो रहा है? तो दो इनोबलिंग लॉस हैव हेल्प्ड, लॉ ने जो हेल्प किया है वो तो छोड़ो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंडिया स्कोर 74% ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी जो है 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि इंडिया टॉप 100 में पहुंच गया है, एसडीजीज में 100 एग्जैक्टली आ गया है। दैट ट्रैक्स वेदर लॉ गारंटीड इक्वल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डाटा फॉर एवरीवन एज 15 एंड अबव। इट फॉल स्लाइटली बिलो ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज लगभग इतनी ही है। नेबरहुड में मालदीव जो है, श्रीलंका जो है और भूटान जो है बेहतर हैं, पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान की बात करना ही बेमानी है। अब सवाल इस बात का है कि ये बात ऑलमोस्ट ए फोर्टनाइट इज देयर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉलिंग फर्टिलिटी रेट। कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर फर्टिलिटी रेट फॉल कर रहे हैं तो। पहली बात तो ये है कि जो फर्टिलिटी फॉल कर रही है, इट इज अमंग्स दोज हु कैन अफोर्ड। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सर्वे किया जाए उनकी फर्टिलिटी में आप कहाँ कमी नजर आएगी? ए चाइल्ड इज बॉर्न एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, उसके बाद 5 किलो मिलना शुरू हो जाता है। स्कूल इज फ्री अगेन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, और वो खाने आखिर में चलता रहेगा। मैरिज अगेन बहुत सारी स्टेट्स ने फंडिंग शुरू की हुई है, 20,000 25,000। फिर चाइल्ड बर्थ होगा, फिर एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट। पर कैपिटा कहाँ जाएगी? आप खुश होते रहिए, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। पर कैपिटा ग्रोथ क्या है? तो मिडिल क्लास और अपर क्लास, उनको एक बचा नहीं, 2 ले लो मान लो, रिप्लेसमेंट लेवल तो तब भी नहीं पहुंच रहा, और आमतौर पे अगर 1 होगा तो वो भी नहीं होगा। और लोअर क्लास में मैं आपको सीधी सी बात करता हूं, दिल्ली के स्लम्स में जाके देखिए। आजकल दिल्ली के स्लम्स की बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया पे बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि डिमोलिशन बहुत ज्यादा हो रही है। परसों एक वीडियो बनी सीलमपुर के ऊपर, जो रिपोर्टर कर रहा था, हर घर में 5-6 7-8 भी हैं बच्चे। ये बात दिल्ली की है, कैपिटल की। और फिर आपका नूह जो है, हरियाणा का मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, वहां तो एक रिपोर्टर ने 24 चिल्ड्रन रिपोर्ट किए एक सिंगल मैरिज से। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ, ये आपका जो डिक्लाइन जिसको आप कह रहे हैं, इससे जो डेमोग्राफी चेंज होगी, द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स हेल्थ। चाणक्य ने सीधा सीधा कहा था, किसी भी नेशन की खुशहाली के 3 फैक्टर्स, बाउंड्रीज जो हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, लोग खुशहाल होने चाहिए, हर हाथ को काम होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ हर हाथ को काम होना चाहिए, तो मुझे आरोप लगाया जाता है ये तो लेफ्टिस्ट बात कर रहा है। तो चाणक्य भी लेफ्टिस्ट है क्या? आप अभी 91 करोड़ लोगों को खिला रहे हो फ्री में, सेंसस आ जाने दो, 2-1 साल की तो बात है, 100 करोड़ प्लस हो चुका होगा। आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बाय 20 to 45, इट विल बिकम अ डेमोग्राफिक कर्स। तो जो भी ग्रोथ हो रही है वो कारपोरेट सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, और आप खुश हो रहे हैं कि नेशन की ग्रोथ हो रही है। ये पॉपुलेशन को चेक करने का तरीका क्या है? यू हैव टू ब्रिंग इन सम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, फिक्स द नंबर ऑफ किड्स दैट कैन बी बोर्न, अदरवाइज स्टॉप। आधार कार्ड कैंसिल, बैंक खाता फिनिश। जो आधार कार्ड ही नहीं होगा तो आप बच्चे पैदा करोगे तो आपको खुद से खिलाना पड़ेगा ना भाई। ये जो बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, ये तो ऊपर वाले की देन मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला देने वाला है तो फिर सरकार कौन होती है खिलाने वाली? खिलाने वाला भी ऊपर वाला ही होना चाहिए। इशू बहुत सीरियस है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात की चिंता है। डेमोग्राफी जिस तेजी से बदल रही है, वो आपके उपाध्याय सर जो हैं एडवोकेट, वो बताते हैं कि करीब 200 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डेमोग्राफी टोटली जो है हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। तहसीलों में भी इतना हो गया है। और तो और छोड़िए, झारखंड और बंगाल में बहुत सारी जगह पे
फ्राइडे की छुट्टी हो रही है। आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानी है तो अड़ोस पड़ोस के देशों की ही जान लीजिए। मुद्दा सीरियस है, कुछ करने अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर आम आदमी क्या करेगा बताओ। सोचो इस बारे में।